Good morning, students. Yesterday we have discussed part A of Model Test Paper 1 of subject English. That was based upon chapter number 7, 9 and 10 and worksheets of these chapters. Right? So students, yesterday we have done passage 1, 2, 3, 4. We have discussed 4 passage. 2 passage were unseen and 2 seen, means 2 passages were taken from our English textbook A New Leaf. तो एक पैसेज हमने चैप्टर में से लिया था, एक पैसेज पोइट्री में से लिया था, राइट। तो हम कवर कर चुके हैं 10 + 10 20 + 10 30 marks, right? We have covered 30 marks out of 80. तो हम इंग्लिश में 30 marks का पेपर कवर कर चुके हैं, जिसमें 4 पैसेज थे जो कि MCQ की फॉर्म में थे, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ग्रामर पार्ट एंड राइटिंग सेक्शन, राइट। तो ग्रामर पार्ट तो पार्ट ए में ही कवर होगा और जो राइटिंग सेक्शन है वो पार्ट बी के पार्ट्स हैं, राइट। So let's start from grammar section. I'm going to revise these concepts. So it's question number 5th. First is form nouns from verb collect. Collect verb given है, इसका हमने noun convert करना है. तो collect का noun होता है collection, right? Collection. तो जो collected है ये तो verb की second form हुई, means past form. Collecting हुई present participle, right? So point A is correct option. Second, fill the suitable adjective. Adjective क्या होता है? जो adjectives are describing words. So dash children like sweets. Our children, all children, whose children, and sharp children. So all children like sweets, right? Third, tick the correct form of adjectives. तो adjective की हमने correct form tick करनी है. So sentence, she is the girl, the dash girl in the class. The जिस सेंटेंस में द होता है उस सेंटेंस में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो कौन कौन सी डिग्रीज थी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसमें हमारे पास थे डिग्रीज ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। तो जहां पे आपको द वर्ड मिलेगा वहां पे हमने कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करनी, वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। इंटेलिजेंट है पॉजिटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट comparative, most intelligent, superlative. So C is the correct option. 4, choose the verbs in the following sentences. तो इसमें इस one sentence is given only. I know a funny little man. So I is subject, know is a verb, a is article, funny little man is a, funny is adjective, little man objective, right? ऑब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? नो, नो की जिसकी वर्ब की फॉर्म्स बनती है नो, न्यू, नॉन। सो नो इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑप्शन ए। फिफ्थ, टिक द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ब्रेक। ब्रेक की फॉर्म्स कौन सी होती है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो पास्ट कौन सी हुई? जो सेकंड होती है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक। तो ब्रोक कौन सा ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स, चूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ क्राई। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी आपको आए तो आपने गिवन जो भी वर्ड होगा, अगर वो प्रेजेंट में है तो क्राई प्रेजेंट में है, उसके साथ हमने ING यूज करना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर यहाँ पे पास्ट आए तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर प्रेजेंट आए तो हमने वो ऑप्शन करेक्ट करना है जिसके साथ ING अटैच हो। नाउ
read this statement again. Choose the present participle of cry. So present means ing, crying. So C is the correct option, right? तो आपको ये क्वेश्चन भी मोल्ड होके पेपर में आ सकता है. 7, complete the sentence with suitable adjective. तो adjective हमने यूज करना है. साइकिलिंग इज अ डैश एक्सरसाइज. हेल्दी, नॉटी, ग्लोरियस, वेरी सैड. सो साइकिलिंग इज अ healthy exercise. So A is the correct option. Next, 8th, fill in the blank with the right verb in brackets. You dash very hard working. You is no. You am no. You are yes. All no. You are very hard working. तो you के साथ are, I के साथ am, right? He के साथ he, she के साथ is. Next, fill in the blank with correct verb in brackets. So want, wants, wanted, none, right? So which is the correct option? Sentence is given, the baby dash milk. Baby is a singular, yes, so we will use s or es with first form of verb. So baby wants milk. So wants means option B is the correct option. Next, 10th, tick the present form of verb of 8. 8 की present फॉर्म ऑफ वर्ब हमने बतानी है. ईट, एट, इटन. तो ईट कौन सी फॉर्म हुई? प्रेजेंट. पास्ट एट एंड पास्ट पार्टिसिपल ईटन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके साथ आईएनजी अटैच हो, ईटिंग, राइट? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पार्ट बी. तो राइटिंग सेक्शन है नेक्स्ट पार्ट बी. पार्ट बी में राइटिंग में 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेटर या एप्लीकेशन में चॉइस होगी, लेकिन हमने 3 वर्कशीट्स में यही एप्लीकेशन की थी, तो इस टाइम हम एक ही एप्लीकेशन करेंगे. और 7 क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ स्टोरी, 2 स्टोरीज और 2 पैराग्राफ में ऑप्शन भी हो सकती है, राइट? I have given option between paragraph and story, right? So 6th point is, your English teacher has fined you 20 rupees for not taking a test. तो आपके इंग्लिश टीचर ने आपको फाइन रखा 20 रुपीज़ क्योंकि आपने टेस्ट नहीं दिया. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू रेमिट योर फाइन. तो आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने अपना फाइन रेमिट करवाना है, फाइन माफ करवाना है, राइट? So first of all, you will learn this application and then try to note it down, right? नोटबुक में से देख के लिखने का कोई भी फायदा नहीं होगा. सो बेटर इज दैट कि सबसे पहले उसको लर्न करो. जितनी भी लर्न होती हैं हाफ ऑफ करके भी लर्न कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट 7th, राइट अ पैराग्राफ ऑन दिवाली फेस्टिवल. तो आपने दिवाली फेस्टिवल का पैराग्राफ रिवाइज करना है, लर्न करना है और अपने आप ही उसको चेक करोगे, अपनी मिस्टेक सॉर्ट आउट करोगे, राइट? और राइट अ स्टोरी हु विल बेल द कैट. तो ये स्टोरी आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन की फॉर्म में भी आ सकती है, राइट? तो आपने इस स्टोरी को लर्न करके ही नोट डाउन करना है, राइट? तो यू विल डू 6 and 7 क्वेश्चन एज होमवर्क. तो आपने 6 और 7 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, we will discuss literature section. So complete grammar section and writing part of part B, right? And we will also discuss grammar section in our live class. But complete your work before attending live class. Fine. Okay students, thank you.